Hello to all of you people, welcome back to my channel, and if you are watching me for the first time, then welcome to my channel. Hope everyone is staying good. So right now I am in Nalanda University, Nalanda ruins actually. So actually I don't know the brief history about this Nalanda University, but I just know little bits and pieces. So it was so this Nalanda ruins was once biggest university, largest university, and it was a renowned university where lots of scholars used to study here, and it was later demolished by Khilji dynasty and was later excavated. So today there is a guide with me. Namaste uncle. Okay. So आपका नाम बताइए पहले. In first, I welcome to everybody as a local guide. My name is Anil Kumar. Okay. After from 1995, I am doing this job as a local guide. So you know it is World Heritage Site. It is came in World Heritage Site on 15 July 2016. Now it is World Heritage Site. Okay. Nalanda University. It was the ancient Buddhist university. Okay. Its history was started from 6th century BC. In 6th century BC, here was mango grove. No any construction was here. Lord Buddha visited this place. When he came here, he found local two disciples here, Mongalpu and Sharipu. Okay. So here is Sharipu Stupa built by Great Ashoka first, then after university built here. So this university built by Gupta dynasty in 5th century AD, but this is not original gate of Nalanda. After cut Diwal they made it, because at present only 1 square kilometer area has been discovered. In those time, here was 10 kilometer long, 5 kilometer wide, 10,000 monk and 1,500 teachers were here. Okay. But you know, complete university had been destroyed, broken, burnt by the invader Bakhtiyar Khilji in 1200 AD. Bakhtiyar Khilji. Sister. Okay. So that time here was 3 biggest library. That name was Ratna Sagar, Ratna Dadhi and Ratna Ranjika. A lot number of books was in library that were burning continuous 6 months. Okay. Then after slowly it was covered with muds like that a hill type. Now only 1 square kilometer area has been discovered by the British archaeologist Alexander Cunningham. Okay. Who information I will give to you all are proof according to diary of Xuan Chang. The Chinese traveler Xuan Chang, he was a student after he became professor here also. He mentioned everything in his diary. Before excavation, complete area were covered look like that type as a small hill. So that side all are the part of Chaityas, means Buddhist temple. Okay. This side all are the part of monasteries. This side all This are side. part of monasteries. Here monks lives and used to study there. These are all meditation platform for Okay. meditation. But that is the most important structure of Nalanda, That one, calling no? Shariputra Stupa. Okay. You know, Shariputra, this was the native place of Shariputra. Shariputra born here and died here. So the great scholar of this university were Naropa, Tilopa, Birupa, Marpa, Shantideva, Shantirakshita, Arjadeva, Basubandhu, Asanga, Dharmakirti, Suvishnu, Nagarjuna, Gumpulutu, Chandrakirti, Davatakpa, Berochana, Shilbhadra, Atisa, they were the higher school of this university. Okay. In those time, language was Pali here, who was the language of Lord Buddha. But subject were art education, medicine, philosophy, astronomy, metaphysics. These were the main subject of this university. This was the entrance for the library. That was the 9th floor building, but all part broken, burnt. Library? And we are going now in the monastery number 1. That is the most important monastery. Come and see. they बोले सुनिए ना अनिल जी, ये प्लेसेस जो है ना वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए ना, कौन सा लाइब्रेरी है, वही तो हम बताए, ये वाला लाइब्रेरी है ना, वो दूसरा वाला कौन सा अभी तो चल रहा है। हाँ, ओके, हमने बताया हिंदी में ही, हिंदी में ओके। ये नालंदा 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था, फिर ये भूकंप में दबा हुआ था। अभी खुदाई करके 11 मोनास्ट्रीज मिला है, जिसमें ये मोनास्ट्री नंबर 1 है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मोनास्ट्रीज है। इसके अंदर जितनी सिस्टम हुआ करती थी हम लोग अभी भी देख सकेंगे। बाकी मोनास्ट्रीज के अंदर कहीं कुछ कहीं टूट गया है, तो आइए इसको हम लोग घूमते हैं।
मोनास्ट्री नंबर 1, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये खालसी ने जो तोड़ा है ना उसको जले की वजह से तोड़ा ना। हाँ, अब हम एक मोनास्ट्रीज के अंदर जा रहे हैं जहां एंट्रेंस पे दोनों तरफ में बुद्धा भगवान की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। ये सब कठिन अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग ओरिजिनल जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा आपकी ज्वाला की तरफ की रही। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया। ये सब पिघला हुआ ईंट था। अब हम एक मोनास्ट्रीज के अंदर, एक हॉस्टल के अंदर, एक बौद्ध विहार के अंदर आ गए जहाँ एक लामा जी का रहने का कमरा था। इनके लिए दोनों बाथरूम था। ये स्नान घर है, यहाँ कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। इसमें 75% जो कंस्ट्रक्शन है ओरिजिनल है, ये 25% रिस्टोर किया हुआ है जिसमें सीमेंट लगा हुआ आप देख रहे हैं। जो ओरिजिनल है सिस्टर, लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल इसमें लगाई जाती थी। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है। मींस ओल्ड इज गोल्ड। ये ओरिजिनल दीवार। Old is gold. ये सब रहने का कमरा है सिस्टर। एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए। Dormitory जैसे? हाँ जी, सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट होता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने का जगह, ये बुक शेल्फ, किताब रखने का जगह था। देखिए, एक कमरा एक लोगों के लिए एनफ है। सब में छत था लकड़ी का, जल गया। एक काला काला दाग जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही थी। सिस्टर, इनका जो रेशियो था 7:1, हर 7 स्टूडेंट पर एक टीचर थे। हर 7 कमरे के बाद एक टीचर रहते थे। कमरा लेकिन एक ही जैसा का था, एक ही तरह का था। अब हम लोग चलते हैं बड़े स्कॉलर गुम्पु लुटुप के कमरे में जहाँ गुफा बनी हुई है। आइए, वहाँ बड़े बड़े लामा जी बारी बारी से जा करके वहाँ ध्यान करते थे, साधना करते थे। आइए एक कमरा में ले चलते हैं। रूम रे तो ये आरती के बाद में पुगु दिन लग begin to Kama porque pete lo de सांग होता। गुम्पु लुटुप बोला ना आपने? नागार्जुन सबसे बड़ा स्कॉलर इधर। हाँ, ये देखिए, यहाँ एक गुफा बना हुआ है। इसके अंदर वो ध्यान करते थे, साधना करते थे। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है, जिसमें मॉनिटरिंग गुम्पु लुटुप करते थे। बाकी जो बड़े बड़े हायर स्कॉलर थे वो भी इसके अंदर आकर के बारी बारी से मेडिटेशन करते थे। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। ये शांति के लिए था। एक बार देख सकते हैं अंदर? जरूर देख सकते हैं। लाइट जला के देखिए। एक आदमी के लाइट बैठने का जला। खूब अच्छा जगह है, आप बैठ सकते हैं। Oh my god. Tagoda, falei do. It was like this. जी चलिए अभी। अभी आपने कहाँ पर पढ़ा ये सब? इसके लिए तो हमें ट्रेनिंग मिलती है ना। यहाँ पे बुद्धा भगवान का विशाल मूर्ति था। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है, बहुत इनर्जेटिक है। आप लोग भी स्पर्श कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। और ये दोनों तरफ में बैठ करके बड़े बड़े लामा जी लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, वो साधना करने की। सो पहले हम आते थे ना इधर, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था। जी सिस्टर, बताने का अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सिस्टर। तो हर एक हॉस्टल के लिए जो आंगन था, यही इनके लिए क्लासरूम होता था। दिस वाज द लेक्चर हॉल एंड दिस वाज द लेक्चर स्टैंड।
जहाँ से टीचर इन्हें टीच करते थे। ये स्टोन इनके पिलर के लिए था जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स रहना पढ़ना सब बौद्ध विहार के अंदर होता था। हम लोग जैसा एक बौद्ध विहार देख रहे हैं ऐसा 108 बौद्ध विहार था। अभी 11 की खुदाई हुई है, एक जैसा बना हुआ है। ये जगह जगह पे धनुष के जैसा चिन्ह मिला है। ये राजा कुमार गुप्त का निशानी होता था जो बड़ा बड़ा ईंट से बना हुआ यहाँ मिला। राजा लोग भी पढ़ते थे ना इधर? हाँ, राजा लोगों के द्वारा ये संचालन होता था। पैसे पढ़ने वाले सब भिक्षु थे, मॉन्क थे। मॉन्क से बना मोनास्ट्रीज बिकॉज इट वाज कॉलिंग मोनास्ट्रीज वेयर मॉन्क्स लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर एज ए विहारा। यू कैन से विहारा। ओके। ये दो सिस्टर, इनका स्टोर रूम है, गोदाम, जहाँ वो चावल रखते थे। इनके छत की बनावट देख रहे हैं, कमानीदार जैसा बना हुआ है। और वो कुआं था, जल की स्टोर रूम, वो कुआं था। यहाँ देखिए कुआं। यहाँ पे जगह जगह पे काट करके दिखाया है। 3 राजा ने 3 तरह का मटेरियल इसमें लगाया था। ये जो बड़ी बड़ी ईंटें लगी है ये गुप्ता डायनेस्टी का है। जो प्रथम राजा ने इसको बड़ा बड़ा ईंट से लगाया था। वो कंक्रीट चुन सुर्खी माटी की दीवार द्वितीय राजा हर्षवर्धन की निशानी है। और वो छोटी छोटी ईंटें तीसरा राजा देवपाल। यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो। यहाँ देखिए सिस्टर कितना अच्छा टेक्नोलॉजी आपके पास 1500 साल पहले था। रखने का था। मैंने बताया वो गोदाम, अनाज रखने की जगह। इसके सामने बुद्धा भगवान की विशाल मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए इधर और इधर ये 2 पत्थर लगा हुआ है। देखने के लिए पत्थर साधारण लग रहा है लेकिन साधारण है ही नहीं। यू सी इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ। अभी भी देखिए इसमें कितना चमक है सिस्टर, देख रहे हैं ना। तो ये साधारण पत्थर नहीं, ये रियल में माई का स्टोन है। ये अब्रक का पत्थर है। उस जमाने में इस छिद्र के पास में कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब यहाँ सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। मींस जस्ट लाइक मिरर, दर्पण सिस्टम। ऑफ कर लीजिए। शाइनिंग थी इधर। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए लेकिन पानी सूख गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की एक नई कहानी भी है। शायद आपने इसको अपने मोबाइल पर देखा होगा। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी के 3 साल के नाती घूमने के लिए आए थे और वो नालंदा की पूरी कहानी बिना गाइड को बताए हुए बता रहे थे। जब इस ब्लॉक को घूम रहे थे वो ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुए। जब उन्हें ऊपर ले जाया गया तो ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बैक हो रहे थे वो कोना के कमरा को उन्होंने बताया, ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर यहाँ के थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं। क्योंकि उतना छोटा लामा जी झूठ भी नहीं बोल सकते। वो पुनर्जन्म की चर्चा कर रहे थे। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था। उनकी दीदी, उनकी मम्मी सोनम दीदी बोल रही थी कि जब से वो बोलना शुरू किया था उसका एकमात्र रट था, हमें नालंदा ले चलिए, हमें नालंदा चलने की बहुत अभिलाषा है। ये स्टोरी है। यहाँ पर भी डोमेट्री है ना भैया जी? यहाँ पे भी सब उसी तरह से। हाँ, ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए, नाली का सिस्टम। सिस्टर वहाँ कितना ऊंचा है। धीरे धीरे करके ये गड्ढा होते जा रहा है। सीमेंट बाद में लगाया गया बचाने के लिए। बाकी ये सब उसी तरह से कमरे हैं। ये तो एज इट इज मिला लेकिन ये दीवार आधा ही मिला था तो ये ढलाई कर करके जो पुराना ईंट बिखरा हुआ था उसको यहाँ रखा गया है। लेकिन इसको बचाने के, लेकिन ईंट वही वाला है, पहले वाला ही। पहले ओरिजिनल तो ईंट ही था ना। हाँ। पहले So these are all dormitory.
Thumbs up. ऊपर जाने का रास्ता था जो पूरा का पूरा लाइब्रेरी जल करके बर्बाद हो गया, जो 9 मंजिला था। यहाँ पर नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा की निशानी को प्रमाणित किया, ये 3 बार में बना है। वहाँ देखिए धनुष के जैसा शेप है ना? वो राजा कुमार गुप्त की निशानी, जो पहला राजा ने बड़ा ईंट से बनाया था। हाँ, दैट इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया। ये ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी का दीवार वो राजा हर्षवर्धन ने लगाया, और ऊपर वाला छोटा छोटा ईंट राजा देवपाल ने लगाया। ये भी एक बौद्ध विहार है, हॉस्टल है, जिसका आंगन क्लासरूम था। हर हॉस्टल का आंगन क्लासरूम होता था। Ya gue expensive itu aku gitu. नालंदा के बारे में मैंने बताया। नालंदा में सबसे बड़ी बात थी, यहाँ फ्री एजुकेशन था। पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं लगता था। सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था वो राजा इनको दे देते थे। खुदाई पूरा 1 किलोमीटर 2 लाइन में हुआ। जैसा हमने वहाँ एक बौद्ध विहार देखा सिस्टर, सेम टू सेम 11 बौद्ध विहार उधर मिला, 11 हॉस्टल, और इधर इसी तरह का 11 मंदिर। यदि वो सबके भी मिट्टी हटाई जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का हार्ट है, ये नालंदा की सबसे मेन जगह है। इसलिए देखिए बुद्धिस्ट लोग सब इसकी पूजा कर रहे हैं। इसका नाम है सारिपुत्र स्तूपा। सारिपुत्र का जन्म भी सारिपु का जन्म भी और मृत्यु भी यहाँ हुआ। सारिपु के मर जाने के बाद ये स्तूप राजा अशोक ने बनाया। उसके बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय बना। बुद्धा भगवान जब आए तो 2 शिष्य बनाया, मोंगलपु एंड सारिपु। तो मोंगलपु का समाधि सांची स्तूपा है, ये सारिपु का समाधि। हाँ, बुद्ध का जो मूर्ति के साथ 2 तस्वीर होता है, तो ये सबसे बेस्ट थे। तो सारिपु का जन्म और निर्वाण यहाँ हुआ। अतः सारिपु के राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया। फिर जब जब यूनिवर्सिटी बना, इस सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्धा भगवान का मूर्ति था जो टूट गया है। इनके आसपास ये जो चौकोर वाला है ध्यान करने का जगह है, वो गोल गोल वाला जो है वो समाधि है। जो लामा जी, जो प्रोफेसर यहाँ मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा या एकदम छोटा समाधि बना देते थे। अच्छा, उसका राख को रख करके जी। तो इसी तरह से सेम टू सेम इधर 11 स्तूप है, उधर 11 हॉस्टल है। इसके चारों तरफ बुद्धा भगवान की मूर्ति लगी हुई थी। कुछ मूर्ति अभी भी दीवारों पर आप देख रहे हैं, लेकिन अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया है, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है। इसके बाद जाना मना है सिस्टर। अब यदि वक्त है तो लोग यहाँ से फोटोग्राफ लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बैठ करके आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। चूँकि बगल में वहाँ डस्टबिन भी है। बाहर निकलना उसी गलियारे से है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। आपने अच्छा गाइड किया। थैंक यू सिस्टर। हैप्पी और जर्नी, सबकी यात्रा मंगल हो, हमारी ये कामना। थैंक यू। हमारा वेतन यही। So rate for guide is 500 rupees, and but you can give some more, like for tip and all. You can add more. आपके लिए थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा गाइड किया। हैप्पी और जर्नी अनिल जी। थैंक यू सिस्टर। हैप्पी और जर्नी, आप यात्रा मंगल हो। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 9955236150। अनिल गाइड नालंदा 99 55 23 61 50। कभी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए सिस्टर हमें आप कॉल कर सकते। ये कोई ज़रूरी नहीं है मैं गाइड किया इसके लिए, मैं बाद में भी अपने उचित जो जानकारी है दे सकता हूँ। ओके थैंक यू। यहाँ से उस तरफ जो है ना, उधर सेम टू सेम 11 बौद्ध विहार हॉस्टल है। इधर सेम टू सेम 11 बौद्ध मंदिर है। अभी 11 हॉस्टल और 11 मंदिर मिलके नालंदा सिमट गया है। बाकी एरिया पर गांव बस गया है, इसलिए खुदाई बंद है।
Okay. खुदाई नहीं अभी खुदाई नहीं हो रहा है नहीं, ना? खुदाई नहीं चल रहा है क्योंकि चारों तरफ में गांव मिला है जी, एक भी गेट नहीं मिला है सर। अब यही तो मिला है ना यहाँ से। नहीं, वो तो आपने बनाया है सर, वो दीवार काट करके रास्ता बनाया है। ओरिजिनल गेट नालंदा का नहीं मिला है सर। मिलने से तो गांव हटाना पड़ेगा। खुदाई जो भी हुई सर, अंग्रेजों ने किया था, अपनी सरकार ने खुदाई अभी नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारे गांव हैं। इट इज प्रॉब्लम टू डिस्प्लेसिंग। 10 किलोमीटर का अंदर है जी, मैंने बताया था ये 10 किलोमीटर लंबा था, 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी तो 1 किलोमीटर का खुदाई हुआ है। Okay. और हैव एनी क्वेश्चन दैट यू Thank कैन you. आस्क। थैंक यू। यू आर फ्रॉम? We are from Sikkim. ओह, सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम याद है आपको? जी, सिक्किम के तो बहुत लोग आते रहते हैं। सिक्किम। लोग आते रहते हैं। मैं नहीं गया लेकिन सिक्किम के लोग आते रहते हैं। Okay. बहुत सारी। कितना बौद्ध विहार है उसमें टोटल? अभी टोटल में 108 बौद्ध विहार था और 108 चैत्य था, यानी 108 हॉस्टल थे। बौद्ध विहार मीन्स हॉस्टल, और 108 मंदिर था। अभी 11 बौद्ध विहार और 11 मंदिर मिला है मात्र, वो लंबा पेड़ तक। बाकी पर गांव बसा हुआ है। 108 के ऐसे था 108। उस समय यहाँ पढ़ने वाले टोटल भिक्षु थे। भिक्षुणी अलाउड नहीं थी। बुद्धिज्म का भिक्षु? हाँ, मॉन्क थे। हाँ, नॉन वे आर नॉट अलाउड। भिक्षुणी अलाउड नहीं थी। उस समय कोई एजुकेशन अलाउड नहीं था। नारियां गृहस्थ आश्रम में रहती थी। तो उस टाइम में तो नारी को तो इतना वो जो अभी इज्जत मिलता उतना नहीं था ना। नारी तो नहीं, नारी इज्जत तो बहुत कुछ मिलता था, ऐसा नहीं, मगर नारी शिक्षा नहीं थी। नारी शिक्षा नहीं थी। सम्मान तो हमेशा देते आए हैं, और वही आदमी सही आदमी बना है जो रियल में नारी का सम्मान करे, चूंकि वो साक्षात लक्ष्मी है। मैं तो ये समझता हूँ। थोड़ा आपके इंट्रोडक्शन करो तो, आप कहाँ के रहते हो? सिस्टर, मैंने बताया मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं बगल गांव बड़गांव का रहने वाला हूँ। बलिक वो जो बढ़िया मकान दिखाई पड़ रहा है, उसके बगल में जो ईंटा वाला मकान दिखाई पड़ रहा है, वही मेरा मकान है, जो यहाँ से सामने दिखाई पड़ता है। जी, मेरा वही नेटिव प्लेस है। ओके, ठीक है, अच्छा है। थैंक यू सिस्टर। बहुत अच्छे से ओके, थैंक यू। थैंक यू भैया जी। आया करता था यहाँ पे, बिना कुछ जानकारी लिए हम लोग तुरंत चले जाते थे। घूमा और किया। हमारा तो यूट्यूब पर, आज हमने बहुत कुछ सिखाया। हमारा यूट्यूब पे लामा जी लोगों ने डाला भी है। आपका ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था वहाँ है, वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर भी ले सकते हैं, और वो आपका टॉयलेट। Okay. So guys, Anil ji has finally concluded his guide, and it was a really informative, really good. He informed us really well. So if you are planning to visit Nalanda ruins, you can surely contact him. He has left his phone number. So आपने बहुत अच्छा गाइड किया हम लोगों को। थैंक यू जी। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। बाय बाय। बाय सिस्टर, बाय। So we are लाइक करो, having सब्सक्राइब lunch. करो। हाले एंड चिप्स Hale tea, chips. and This is Morai to Gangtok Morai sandwich. Sandwich cover. You can have this also. 우선 쌤배. Soft rice. 이게 가자. 응? 쌤배. 사야게. 한번 사야게. 어디야? 뭐지? 체중 났다는 거.
Thank you. Hey guys, I'm exiting Nalanda ruins now, and today was really informative. We really got a lot of information from our tour guide Anil Ji. So thank you Anil Ji for all the information. And earlier we used to come here, we didn't have any information about the place. We used to just enjoy and just sit and have lunch. But now, having gained a lot of information about this place, it really I feel really disheartened to know the history behind such a renowned university like Nalanda University over here. It was a really epitome of knowledge where lots and lots of scholars used to come here. But the conclusion or the ending story is quite disheartening. So with this I come to the end of this vlog. If you enjoy it, do give it a like, share and also subscribe to my channel. Bye bye, take care of yourself.